My name is Vadman Jain, and I am here for telling you guys about the Regulatory Bodies Aptitude Prelims program. Today, we will see कि जो रेगुलेटरी बॉडीज के प्रीलिम्स होते हैं वो कैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर के इन एंड अराउंड घूमते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंपेयर द डिफरेंट बॉडीज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर and how much quantitative aptitude and reasoning ability are there in that section with how many questions and how many their solutions. Okay, so this is regulatory bodies aptitude prelims program. Okay, regulatory bodies prelims aptitude program presented by Vadman Jain. We will see that this is a short summary of what, sir, if the paper is NABARD, it's prelims program. Right now this is obviously of starting first paper, that is prelims. Sir, NABARD, the duration of the paper is 2 hours and their total marks that paper contains are 200 marks. और उसमें फोकस क्या होता है सर? रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर. अभी हम हर एक पेपर का नीचे डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे कि कैसे हम क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग पे कमांड पाकर सिर्फ एक पेपर नहीं, वी कैन सॉल्व मल्टीपल पेपर्स प्रीलिम्स प्रोग्राम इजीली. So NABARD, SEBI, SIDBI, PFRDA, IBPS, SO is a specialized officer for those who have completed their post graduation. So this is not a PO but SO for those who have completed their post graduations and in different fields like finance, marketing, in Hindi also, in Rajbhasha language and many other. SBI, SO and NPS. NPS is National Pension Scheme. So we will here see this. Okay, this is of the NABARD paper. NABARD, you know, everybody knows about this paper. It is a grade A official job. Okay, NABARD. Its prelims consist of 2 hours. And in 2 hours, how much questions and how many types of questions we have to solve? In reasoning, there are 20 questions with marks 20 marks. In English, we have 30 questions with marks 20 marks. Obviously, sorry, 30 marks. In computer, 20 questions with 20 marks. In quantitative aptitude, 20 questions with 20 marks. In ESI, 40 क्वेश्चंस विद 40 मार्क्स एंड इन एआरडी 40 क्वेश्चंस विद 40 मार्क्स. अब क्या होता है कि सर सबसे पहले तो ये जो 2 सब्जेक्ट होते हैं ना, ये NABARD में अलग से हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं बिकॉज दे आर मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट. तो इसकी तैयारी जब हम मेंस की तैयारी करते हैं तो इसके साथ साथ इन दोनों पेपर की तैयारी हो जाती है. बट एक यूपीएससी एस्पिरेंट इज वेल इनफ टू डू इन जीएस और इन मेंस. ओके, बट यहाँ पे आके रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, यहाँ पे आके वो हमेशा कहीं ना कहीं अटकता जरूर है. या तो उसकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती, या तो अगर सब में सेक्शनल कट ऑफ होती है, इफ देयर आर सेक्शनल कट ऑफ इन एवरीवन, तो कहीं ना कहीं वो एक सेक्शन में अटक जाता है या दूसरे में नहीं अटकता. सो दिस केस हैपेंस एंड फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years we have seen that mainly the persons that are in regulatory bodies appearing are mostly UPSC aspirants who are just fed up over the UPSC paper pattern or UPSC papers harshness and the age limit also, or we can say the attempt limit also. So their best option is to jump towards regulatory bodies paper, not in state civil services or not in any other civil services, because they are also a trap. So these are the safest option where a UPSC aspirant, a 3rd or 4th attempt person can think to go. Okay, so reasoning, English, quant and computer, ये हमारा इस कोर्स का मेन चीज होने वाली है. जैसे आपने देखा कि NABARD में ये चारों चीज आ रही है. अगर अब हम इसको दूसरे पेपर पे शिफ्ट करें, जैसे कि इसे हम शिफ्ट करते हैं सेबी पे. ओके, दिस इज नाउ सेबी पेपर. अगेन ग्रेड ए लेवल पोस्ट, ग्रेड ए लेवल पोस्ट लाइक आरबीआई ग्रेड बी, समथिंग लाइक दैट. अब यहाँ पे सर क्या है? जनरल अवेयरनेस. ये एक पोर्शन होता है जो हम ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स, इसको ऑलमोस्ट ऐसे बोलते हैं हम सर, करंट अफेयर्स, जो हम यूपीएससी वाले ऑलमोस्ट तैयार करते ही रहते हैं. इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, यहाँ पे भी सर ये तीनों चीज कॉमन है. 40 मार्क्स. ऊपर मार्क्स का परसेंटेज कम था, यहाँ पे मार्क्स का परसेंटेज ज्यादा है. देन लास्ट सिक्योरिटी मार्केट. तो अगर आप ढंग से प्रीलिम्स को एनालिसिस करके देखोगे ना, तो उसमें क्वांट, इंग्लिश, मैथ्स तो चलती जा रही है, प्लस या तो करंट अफेयर्स में ऐड कर देगा या तो फिर मेंस का कोई एक सब्जेक्ट ऐड कर देगा. अब इसकी खूबसूरती होती है कि सर जब हम मेंस पढ़ रहे होते हैं तो हम ये डेफिनेटली तैयार करते हैं. इसके लिए हमें और कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं होता. जो हमारा मेंस का कंटेंट होता है 300, 400, 500 पेजेस का, उसमें ही ये सब कुछ कवर हो जाता है. तो हमारा प्रीलिम्स प्लस मेंस ऑलमोस्ट एक साथ चल रहा होता है. बस ये 3 चीज अगर गड़बड़ नहीं करे, सो वी आर रेडी टू गो फॉर द मेंस. ओके, ये था हमारा सेबी का. Now let's jump to the other paper, that is SIDBI. Again SIDBI, a very good pay. Approx अगर आपके इन हैंड देखेंगे तो 1.5 लाख के करीब इन हैंड आता है.
जो कि एक बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट पैकेज माना जाता है, आपको कोई हटा नहीं सकता। प्लस ग्रेड ए लेवल जॉब्स होती है, यू आर ऑब्वियसली एन ऑफिसर, जैसे आरबीआई ग्रेड बी में होता है। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, कंप्यूटर, ये चारों चीजें नाबार्ड में भी थी। बस यहाँ पे अगेन एमएसएमई और स्ट्रीम, ये दो चीज चेंज हो गई। यहाँ पे भी अब ये होता है कि सर किसी की सेक्शनल कट ऑफ होती है, नहीं होती, बट दैट डिपेंड्स अपॉन पेपर टू पेपर। अगेन 30, 25, 25, 20, 30 marks. These are the questions and these are also the marks that it contains. 200 marks and 2 hours paper. Should be. So you will see that English, reasoning, quant is so much essential for any regulatory paper that you are going to go. It's just it just used to be CSET where the maths was easy, but since last 3 years we have seen that it's maths also getting tricky. So almost in India there is no paper left where you will leave maths. Okay, that's why maths and reasoning should be a part of your curriculum in advance only. PFRDA, next paper is PFRDA. Okay, PFRD, English, Quant, Reasoning, General Awareness. Such a easy syllabus for an any UPSC aspirant. ये तो भाई साहब करंट अफेयर से कवर होगा ही होगा. ओके, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग अब हमें करनी है. अब बच्चा क्या होता है सर, यहाँ पे ना टाइम लिमिट का बड़ा गेम होता है. टाइम लिमिट मतलब सर उस सेक्शन को मुझे अगर टाइम दिया गया है तो क्या मैं उस टाइम लिमिट में कंप्लीट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा. या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने हार्ड क्वेश्चन तो पिक नहीं कर लिए, क्योंकि इट्स ऑलवेज अबाउट सेलेक्टिंग द राइट क्वेश्चन. ऑलवेज एंड ऑलवेज इन मैथमेटिक्स पेपर कहीं पे भी आप देखोगे, चाहे वो कैट हो, स्नैप हो, मतलब आप जितने भी मैथ्स पेपर उठा के देखोगे, द फोकस इज ऑलवेज अबाउट सेलेक्टिंग द राइट एंड इजी क्वेश्चंस. अब इजी यहाँ पे वेरिएबल वर्ड होता है. इजी जितना हम प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जितना हम 200 कॉन्सेप्ट्स की फाइल के हिसाब से चलते हैं, उतना ज्यादा वो पैटर्न से फेमिलियर होता जाता है. सो इजी इज अ वेरी डाइल्यूटिंग वर्ड. सो दैट्स व्हाई इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, अगेन जनरल अवेयरनेस, PFRDA डन. ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पेपर इन क्यू? IBPS SO, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स खत्म, और कुछ चाहिए ही नहीं. सिर्फ ये 3 चीज आनी चाहिए. इन 3 की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए. इनके बेसिस पे हमारा आंसर बनेगा और इनके बेसिस पे हमारी प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर होगी. नेक्स्ट SBI SO, SBI SO क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग एंड IT, स्पेशलाइज्ड ऑफिसर. आपने अभी तक SBI PO तो बहुत देखा होगा और SBI PO के ऊपर कंपटीशन भी कितना है. बट दिस SO इज फॉर postgraduate students in different fields, in finance, in marketing, in HR. So posts are available for that also. Next we will see NPS, a very good paper, amazing paper, amazing pay, और एक बहुत आपका वर्क लाइफ बैलेंस बना रहेगा. इसका भी क्या है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, जनरल अवेयरनेस एंड स्ट्रीम स्पेसिफिक. सो नाउ you are evident that these are just example of 6 to 7 papers जहां पर इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग आई रही है. ऑलमोस्ट और सब आप पेपर उठा के देखोगे तो आप ये मैच करोगे कि आ रहा है. बट एक दिक्कत जो होती है सर, अगर हम कोई भी एक स्पेसिफिक कोर्स लेते हैं तो उसमें ये जो क्वांट्स का सेक्शन होता है या फिर ये रीजनिंग का जो सेक्शन होता है, ये इतना हैवी कवर नहीं होता जिसकी वजह से मेरी प्री की कट ऑफ क्लियर हो. सबसे बड़ा ट्रैप होता है. ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज मैंने कितने स्टूडेंट्स को देखा है जो कोर्स खरीदते हैं. आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म को जानते होंगे, वहां से कोर्स लेते हैं कि सर मैं वहां से तैयारी कर रहा था बट मैंने RBI के लिए देखा तो RBI की मैथ सर वहां पे 12 क्लासेस में खत्म करा रखी थी बस. इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर द RBI क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन 12 क्लास. हो ही नहीं सकता. जिस हिसाब से वहां की कट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की और पूरे RBI की कट ऑफ शूट आउट कर रही है, यहाँ पे आप फंस के रह जाओगे. आप बोलोगे सर मैंने GS तो अच्छे से करा था, मैंने करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छे से करा था, बट क्या वो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्वांटिटेटिव की सर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई, या रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई. तो जो सबसे ज्यादा बच्चा अटकेगा वो यहाँ पर ही अटकता है. एंड इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप कहीं से भी प्रिपेयर करो. इट्स नॉट अबाउट जस्ट परचेसिंग दिस कोर्स, इट्स अबाउट मेकिंग द माइंड की इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट पे मेरी कमांड होनी चाहिए, चाहे वो CSET 2027 के लिए हो या फिर फर्दर फॉर एनी रेगुलेटरी बॉडीज पेपर के लिए हो. दैट्स इट. दिस इज द एविडेंस कि सर ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये कितने ज्यादा कोर्सेज में आया है. सो प्लीज डू मेक श्योर कि जो अब आपका टाइम मिल रहा है, अगर आपका प्रीलिम्स हो गया तो वेल एंड गुड, कल रिजल्ट आया है, बहुत ही बढ़िया, आप मेंस में लग जाइए. अगर नहीं हुआ, इफ यू आर लुकिंग फॉर नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स ऑल्सो, दिस इज द टाइम टू गो फॉर मीन्स एंड टू प्रिपेयर फॉर दिस. इससे एक तो क्या होगा सर कि हमारा CSET 2027 में पूरा बेस बन चुका होगा. हमें CSET के लिए अलग से तैयारी करने की कुछ भी जरूरत नहीं है. और सर हम वी आर रेडी फॉर रेगुलेटरी बॉडी पेपर. तो जब 3rd, 4th या 5th अटेम्प्ट लग रहा होता है ना,
तब हमारे दिमाग में प्लान भी बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए। इसलिए रहना चाहिए कि सर बिकॉज जिस हिसाब से यूपीएससी चल रहा है वी डोंट नो कि क्या होने वाला है, क्या होगा, बट वी नो कि आवर करियर मैटर फर्स्ट। इट्स ओके, वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब, वी आर ड्रीमिंग फॉर अ जॉब, बट सर फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट, मतलब फाइनेंशियली भी हमें होना ही होना है इंडिपेंडेंट। कब तक डिपेंडेंट रहेंगे यार, मतलब देयर इज अ पर्टिकुलर एज। यहाँ पे यूपीएससी में मिथ हो गया है कि हम 6 से 7 साल आराम से दे सकते हैं किसी चीज को, बट आप बाहर जॉब स्किल्स में जब जाओगे यूपीएससी को छोड़ के, यू विल रियलाइज कि हम कितनी पीछे आ चुके हैं। जिस हिसाब से मार्केट ट्रेंड कर रहा है, जिस हिसाब से लोगों के पास स्किल्स आ चुके हैं, जिस हिसाब से लोग कॉम्पिटिटिव पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, द कट ऑफ इज शूटिंग। आरबीआई की कट ऑफ इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 90 के अराउंड जाएगी, जो 72 होती थी, 62 होती थी या 50 के अराउंड होती थी। सो जितनी पोस्ट आ रही है, जितने हैं, सब जो बच्चे रेगुलर, जिनके पास एडवांटेज है, जिनके पास ये रिसोर्सेज है, वो सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप बिल्कुल यूपीएससी डेडिकेटेड लाइन पे चल रहे हो, बट देयर इज अ टाइम टू गेट अ रियलिटी चेक कि सर अभी मुझे मेरे करियर को स्टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। करियर स्टेबल होगा तब मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ, लाइफ के और पैरामीटर्स ओपन कर सकता हूँ। कब तक मैं बस ये सोचता रहूंगा कि यार एक बार हमारा भी निकलेगा निकलेगा? यू हैव टू पिक अप, यू हैव टू गेट, जो भी तुम्हारे वीक पॉइंट्स है वहां पे फोर्स करना पड़ेगा, उसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा, देन यू विल सी दैट यू आर गेटिंग अ गुड रिजल्ट। So yes, the batch is starting from 24 June and from the starting of the July also there is a very basic price, और उसमें सारे PYQs कवर होने वाले हैं। चाहिए तो आपने 7 पेपर देखे, कम से कम 8 या 10 पेपर के वहाँ सारे PYQs कवर होंगे, सारे बेसिक कवर होंगे। यू विल बी गुड टू गो इवन फॉर द कैट एग्जामिनेशन। कैट की क्वांट्स भी आप मीडियम लेवल की कर लोगे कि आप 90-95 परसेंटाइल क्वांट सेक्शन में ला सकते हो। सो इतना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होने वाला है। दैट्स व्हाई द क्लासेस आर गोइंग फॉर फ्रॉम 40-50 अप्रॉक्स, 40-50 तक जाने वाली है क्लासें। यहाँ पे हम 10-15 क्लास में खत्म नहीं करने वाले कि सर हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें क्लास के अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना हमारा क्लास में हो रहा है हम कर रहे हैं, उसमें हमारा कंप्यूटर भी होगा, रीजनिंग भी होगा, इंग्लिश भी होगा, एंड मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।